Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan, your educator and mentor on Arpita Sharma classes, the platform where you get quality lectures for UPSC CSC preparation for free. We are going to cover environment and ecology based current affairs topics in an easy manner today. Before we start, here is a small announcement for you which is going to change the way you prepare for UPSC. You have seen it once, you have participated once, you have loved it once. It's time to do it again. Unacademy is proud to announce the Unacademy Summit 2.0, a two-day free event on the 20th and 21st February 2021 to inspire civil service exams aspirants to give it their very best. With 50 plus speakers from different walks of life fortifying your preparation, this summit is a must attend for every aspirant. That's not all. With curated sessions and workshops to equip you with the strategies and aid your practice, the Unacademy Summit 2.0 is a one of a kind event. Realize your dream of serving the country with this free to attend summit. To unlock the summit, use code ARPITA10. Register now. Link is in the description below the video. Today's topic for environment and ecology is Revenue Village Status under Forest Rights Acts, that is FRA. Let us start with the topic. So the topic is Revenue Village Status under Forest Rights Act. Why this is news? क्यों है ये न्यूज़ में? क्योंकि 3 villages inhabited by the Tongia scheduled tribe in and around forest in Saharanpur district, Uttar Pradesh, will be given the status of revenue village under the Forest Right Act 2006. 3 villages को revenue village का स्टेटस मिलेगा अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के हैं और टोंगिया शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं. अब ये कौन से विलेजेस हैं? दीज विलेजेस आर कलवला, सोधीनगर एंड भगवतपुर. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू विलेज स्टेटस. ये रेवेन्यू विलेज स्टेटस क्या होता है? It means that the village area will come under the revenue department instead of forest department. ऐसे village area जो कि revenue department के अंतर्गत आएंगे, ना कि forest department के अंतर्गत. Okay? So the Forest Right Act 2006 has a provision for turning forest village into revenue village so that the civic facilities reach these area. फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में एक प्रोविजन है जिसमें यह है कि जो फॉरेस्ट विलेजेस को कन्वर्ट किया जा सकता है रेवेन्यू विलेजेस में, जिससे जो सिविक फैसिलिटीज हैं वो उन एरियाज तक पहुंच सके. So, according to the FRA, forest villages are the settlements which have been established inside the forest by the forest department of any state government for forestry operations or which were converted into villages through the forest reservation process and includes forest settlement villages. As per Forest Rights Act, फॉरेस्ट विलेजेस ऐसे सेटलमेंट होते हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर स्टैब्लिश हुए हो बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, जिसका मेन पर्पस ये होता है फॉरेस्ट ऑपरेशन को लीड करना और जो भी विलेजेस कन्वर्ट हुए हो फॉरेस्ट विलेजेस में फॉरेस्ट रिजर्वेशन प्रोसेस के अंतर्गत और इंक्लूड करें फॉरेस्ट सेटलमेंट विलेजेस को. ओके अब ऐसे कौन से अदर विलेजेस हैं दैट बीन ग्रांटेड रेवेन्यू विलेज स्टेटस अर्लियर, जिन्हें पहले से रेवेन्यू विलेज स्टेटस मिला हुआ है? ऐसे कौन से विलेजेस हैं? यूपी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज 23 टोंगिया फॉरेस्ट विलेजेस दैट इज ऑफ गोरखपुर एंड महाराजगंज, 4 टोंगिया विलेजेस ऑफ गोंडा एज रेवेन्यू विलेजेस इन May 2018. अब 3 villages of Lakhimpur Kheri district, Surma, Golbhoji, Devipur in 2010. विलेजेस जो है ये जो विलेजेस हैं सूरमा, गोजबोलजी, देवीपुर दैट फॉल इन द दुधवा नेशनल पार्क कोर जोन एरिया. ओके लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टोंगिया विलेज. कब सेटअप हुआ? 1930 में. टोंगिया हुआ द विलेजेस ऑफ प्लांटेशन वर्कर. टोंगिया क्या होता है? ये विलेज होता है प्लांटेशन वर्कर्स का. विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज कम्युनिटीज परमानेंटली सेटल डाउन इन द एरिया एंड स्लोली
These settlements have come to be known as the Tongya villages. जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे इस कम्युनिटी ने अपना सेटलमेंट परमानेंट कर लिया उस एरिया में, और स्लोली स्लोली इनका सेटलमेंट अच्छा होता गया, तो इसका नाम रख दिया गया तोंगिया विलेज. अब आफ्टर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, the Tongya community has been facing discrimination in various forms. According to Forest Conservation 1980 में तोंगिया कम्युनिटी को ये कहा गया कि वो कई टाइप से डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं एंड मेड द प्लांटेशन वर्क इनसाइड द रिजर्व फॉरेस्ट ऑब्सोलेट. Let us understand some points about Forest Rights Act. Act passed in 2006 grants legal recognition to the rights of traditional forest dwelling communities. ये कब पास हुआ? 2006 में. और ये क्या ग्रांट करता है? लीगल रिकॉग्निशन देता है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज को. ओके, राइट्स देता है उनको. अब कब ये इफेक्ट में आया? 2008 में. It also covers other traditional forest dwellers who have been residing in such forest for generations but whose rights could not be recorded. ये उनको भी कवर करता है जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो दूसरे भी होते हैं, अदर टाइप्स के भी होते हैं, और जो कि उस फॉरेस्ट में रिसाइड कर रहे हैं काफी जनरेशन से, बट उनके उस राइट को रिकॉर्ड नहीं किया गया अभी तक. अब makes a beginning towards giving communities and the public a voice in forest and wildlife conservation. अब फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? प्राइमरीली रिसाइडिंग इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड्स, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हो या फिर फॉरेस्ट के लैंड में. अब डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट लैंड फॉर अ लाइवलीहुड. Either the claimant must be a member of the scheduled tribe in that area, जो पर्सन है वो मेंबर होना चाहिए शेड्यूल ट्राइब का उस एरिया का, या फिर मस्ट हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 75 ईयर्स, फॉरेस्ट में 75 ईयर्स तक के लिए रहा हो. अब समझते हैं कौन कौन से राइट्स आते हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत. द एक्ट हैज 12 राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स ओवर अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग. टोटल 12 राइट्स हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब के, जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं. पहला है लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर हैबिटेशन और फॉर सेल्फ कल्टिवेशन फॉर लाइवलीहुड. फॉरेस्ट में रह रहे हो फॉर हैबिटेशन के लिए या फिर कल्टिवेशन कर रहे हो अपने खुद के जीने के लिए. अब community rights such as nistar, including those used in erstwhile princely states, zamindari or such intermediary regimes. Right to own, use or dispose of minor forest produce. Conversion of forest village to revenue village. Conversion of patas or leases. Patas is also known as leases issued by any local authority or any state government on forest lands to titles and other traditional customary rights. Customary rights कौन कौन से exclude करते हैं? Customary rights exclude hunting, trapping और extracting body parts of any wild animal. अब कौन कौन से राइट्स और भी हैं इनके फॉरेस्ट राइट एक्ट के? ये है कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब ऑल्सो कैन नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी दैट एडवर्सली अफेक्ट्स वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट एंड द बायोडाइवर्सिटी इन द लोकल एरिया. जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल ट्राइब है वो ऐसी भी किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं जिससे वाइल्ड एनिमल्स को इफेक्ट हो, फॉरेस्ट को इफेक्ट हो या फिर बायोडाइवर्सिटी जो लोकल एरिया की है उसको नुकसान पहुंचे. अब need to ensure that adjoining catchment areas and water sources are adequately protected. Rights in or over disputed lands, right of access to biodiversity and community right to intellectual property and traditional knowledge related to biodiversity and cultural diversity. Right to access हो biodiversity के लिए और community right हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, और ट्रेडिशनल नॉलेज होनी चाहिए किसके सब्जेक्ट्स से रिलेटेड? बायोडाइवर्सिटी और कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड. ओके, अब राइट टू प्रोटेक्ट होना चाहिए, रीजनरेट होना चाहिए और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच दे हैव बीन ट्रेडिशनली प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग फॉर सस्टेनेबल यूज. The right of ownership, access to collect, use and dispose of minor forest produce.
लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स। प्रोसेस क्या होता है राइट्स को रिकॉग्नाइज करने का? 3 स्टेप प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग ऑन हु गेट्स राइट्स। ये 3 स्टेप प्रोसीजर होता है कि किसको ये राइट्स मिलेगा ये डिसाइड करने के लिए। पहला है फर्स्ट द ग्राम सभा फुल विलेज असेंबली, नॉट द ग्राम पंचायत। फुल विलेज असेंबली इन्वॉल्व होगी ना कि ग्राम पंचायत। मेक्स अ रिकमेंडेशन, ग्राम सभा जो है वो रिकमेंडेशन करती है और ग्राम सभा रिकमेंडेशन गोज थ्रू 2 स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग कमिटीज एट द तालुक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो ग्राम सभा की रिकमेंडेशन है वो 2 स्टेजेस ऑफ स्क्रीनिंग कमिटी से इन्वॉल्व होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती। ओके अब स्क्रीनिंग कमिटी जो होती है कंसिस्ट ऑफ 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। कौन कौन से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं? फॉरेस्ट के होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के होते हैं। सो 3 elected members of the local body at that level. These committees also hears appeals. The district level committee makes the final decision. जो district level की कमिटी होती है वो फाइनल डिसीजन लेती है। आप समझते हैं नोडल एजेंसी ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। नोडल एजेंसी कौन सी होती है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की? द मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डीलिंग विद द ट्राइबल अफेयर्स और एनी ऑफिसर और अथॉरिटी ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि डील करती है ट्राइबल अफेयर्स से, और कोई भी ऑफिसर या अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। Okay, in this behalf shall be the nodal agency for the implementation of the provision of this act. So all this about the revenue village status. So hope you understand. Thank you.